their own country, which is Afghanistan. This is something that we have, we really feel proud of, because the number of refugees that we have hosted over the last several decades, that is perhaps unprecedented anywhere in the world. We also share the international community's concerns over human rights situation in Afghanistan, especially issues related to women's rights, girls' education, and women's employment. We will continue to raise these issues with the Afghan interim administration. We believe that instead of coercive measures, engaging the Afghan interim government is much more likely to deliver results. Equally important is to avert humanitarian crisis in Afghanistan. For that purpose, I think delinking aid from political considerations holds the key in this regard. We remain steadfast in our commitment to fight terrorism and extremism. We condemn all forms and manifestation of terrorism, including state terrorism and state-sponsored violence against religious minorities. We also reject any attempt to politicize the issue of terrorism by linking it with certain countries, communities, regions, or religions. The entire global community is the victim, and we have to act together to uproot this menace. For Pakistan, the biggest concern right now is the enhanced terrorist threat from TTP and ISK and their ability to use Afghan soil for launching attacks against Pakistan. We remain closely engaged with the Afghan interim administration on this issue. While we are committed to fighting and defeating the terrorists, we wish to highlight that terrorist outfits trying to gain a foothold in Afghanistan should be treated as a threat to the neighborhood and the entire international community. Pakistan desires peaceful and cooperative neighborly ties with India. Unfortunately, Pakistan's positive outreach and peace overtures, including the opening of Kartarpur corridor for visa-free visits from India, from Indian Sikh community into Kartarpur, and my predecessor's visit to India for the SCO meeting have been met with negativity. India's illegal actions in the occupied Jammu and Kashmir and abhorrent human rights violations of innocent Kashmiris at the hands of Indian security forces have further deteriorated relations between our two countries. Worsening religious extremism in India, especially against Muslims, has further complicated the situation. In such a complex environment, objectives of regional peace and stability calls for peaceful, constructive dialogue on all outstanding issues, including Jammu and Kashmir. India's belligerence and anti-Pakistan theatrics for domestic elections are taking us further away from this objective. Pakistan's relations with China are historical and anchored in strong trade and economic ties. China is Pakistan's largest trading partner and a major investor, especially in infrastructure and energy sectors. China-Pakistan Economic Corridor is a flagship project that aims at enhancing connectivity and improving infrastructure. I must underscore that Pakistan's relationship with China are not a zero-sum game and not at the expense of our relations with any other country, least of all with the United States of America, with which we have robust ties and a relationship of trust. We believe we can have close and cooperative relations with both
the United States and China. Having acted as a bridge between the two countries in the past, we remain convinced that a stable and cooperative relationship between US and China is imperative for global growth, development, and security. Pakistan's position on the Ukrainian crisis is dictated by our belief in amicable resolution of conflicts and respect for the UN principles and territorial integrity and sovereignty. We will continue to play a constructive role to help end the war and mitigate the sufferings of the Ukrainian people. We hope that peace would prevail to allow people of both Russia and Ukraine to enjoy its dividends. We also believe that mitigating the impacts of this crisis on global food and energy security is critical, and hope for early resumption of Black Sea grain initiative. We recognize the importance of international cooperation for global peace and prosperity. To this end, Pakistan has always been a strong advocate for multilateralism, believing that through dialogue and diplomacy, we can resolve conflicts, alleviate poverty, and achieve sustainable development. We have been actively involved in the United Nations peacekeeping missions, contributing our troops to promote peace in conflict-ridden areas. Pakistan also considers arms control, disarmament, and non-proliferation efforts as vital tools to promote the goals of peace and security at the global and regional levels. Pakistan has always advocated the need for inclusive forums for deliberations and negotiations, taking into account the security interests of all states. Pakistan has been a leading voice for the reforms of the Security Council to make it more democratic, inclusive, and accountable through reforms of its membership and improvement in its working methods. Climate change is another pressing global challenge. As last year's devastating floods bear testament, Pakistan has been on the receiving end of the worst impacts of climate change, despite being one of the lowest contributors to global warming. We are doing our part to combat it by investing, with the help of our friends like the United States of America, in reconstruction, tapping renewable energy, reforestation, and sustainable agriculture practices. Ladies and gentlemen, we are committed to moving our economy to macroeconomic stability. And the good news is that since May of this year, the macroeconomic indicators in Pakistan, they have improved significantly. CPI index, which stood at 38% in May this year, has come down to 27%. We have also embarked upon an ambitious program to raise taxes, and the taxation system has also been reformed in recent months. And the dividends of these reforms will be apparent very, very soon. We are also introduced a special program for investment in Pakistan, which is known as Special Investment Facilitation Council. The idea basically behind this initiative is to cut the red tape and introduce a kind of a real one window operation for investors to invest in Pakistan. This new concept has generated a lot of interest, particularly amongst the GCC countries. And in the last 1 month, we have signed agreements with investors from the Middle Eastern countries under this program, almost close to about $35 billion. The investment is coming in sectors like agriculture, information technology, energy, mines and minerals, and defense production,
All these areas are up for investment for overseas investors, and the response has been extremely positive from our point of view. We are also training we have set up new IT training centers in Pakistan, and we hope to produce about 200,000 IT experts every year, which would, from a conservative estimate, will take our IT exports from the current level of $2.5 billion to almost $10 billion in the next 4 to 5 years. One important factor that has been introduced is the fiscal discipline. So that is something that is being seriously taken by all of us. Of course, problems are there because of the inflationary pressure, because of the prices of fuel and gas in the international market, which also creates its own dynamics in Pakistan. Ladies and gentlemen, let me conclude by reiterating that Pakistan is committed to playing its part in the Committee of Nations to address the pressing challenges of our times and realize its vision of peace, stability, justice, equity, and shared prosperity. I thank you all. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے فورم میں مدعو کرنے پر سب سے پہلے شکریہ ادا کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس وقت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی. مسائل کا حل اجتماعی کاوشوں سے ہی ممکن ہے. معاشی بہتری ہماری خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے. دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت مختلف نوعیت کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اہم رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. انصاف ہو. اقتدار سے جانے کے بعد ہم نے یہی سنا کہ مطلب اس طریقے Tahukah Anda, ternyata tidak semua suplemen serat dapat memberikan kesehatan gula darah yang Anda inginkan. Karena tidak semuanya memiliki kandungan serat yang tepat. Organic Metafiber holder बेरोजगार ہمارے بچے تعلیم سے محروم 3.25 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے. صاف پانی نہیں مل رہا ہے. ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کینسر کی بیماری سے مرتے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ اس مہنگائی کی وجہ سے ملک میں ٹینشن میں، ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں اتنا اضافہ ہوا. جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نے جب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اس بلوں کی وجہ سے 1 درجن سے زیادہ لوگ انہوں نے خودکشی کی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا نے ترقی کی، بنگلہ دیش نے ترقی کی، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، پڑوس میں افغانستان، ان کی کرنسی ہم سے اچھی. دبئی نے ترقی کی، سعودی عرب نے ترقی کی، ترکی نے ترقی کی. بھائی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کی کرنسی جنوبی ایشیا میں سب سے کمزور ترین کرنسی ہے. 3
3 गुना मजबूत करेंसी इस वक्त अफगानी है। हमारे बरामदात खत्म, हमारे शरई नमू तरक्की का ग्राफ 0.25 पर आया है। इंडिया में 9 से आगे, बंगाल में 7.8 तक पहुंच गया है। हम मुसलसल तनज़्ज़ुल की तरफ, रफ़ाई के तरफ, बदबख्ती की तरफ जा रहे हैं और आसपास के लोगों ने तरक्की की तरफ सफर शुरू किया है। क्या किसी को एहसास है कि आपके 300 बच्चों ने यूनान के समंदर में डूब गए और शहीद हो गए? आज भी यहां लोगों को मौका मिले, सब भागना चाहते हैं। नौजवान डिग्रियों के साथ मुल्क छोड़ना चाहते हैं। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह से हमें कोई गिला नहीं। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा और अल्लाह का चैलेंज है कि वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे नहीं कर सकते। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम ना शुक्र नहीं है। अल्लाह ने आजादी अता की, अल्लाह ने 60 साल में हमें एटमी पावर बनाया। अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी कौम का 65% ताकतवर नौजवान मौजूद है। हमारा मुल्क है जो दुनिया में मेहरी निजाम के हवाले से सबसे बेहतरीन जरी पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, गंदम पैदा करने में 7वें नंबर पर, गन्ना पैदा करने में 5वें नंबर पर, चावल पैदा करने में 8वें नंबर पर, दूध पैदा करने में 5वें नंबर पर, आम पैदा करने में 7वें नंबर पर और कोयला 185 अरब टन, 25 खरब डॉलर का कोयला हमारे साथ मौजूद है, जिसको लोग काला सोना कहते हैं। 105 खरब क्यूबिक फुट गैस मौजूद है। टनों के हिसाब से सोना मौजूद है। आपके पांव के तले सोने के जखायर, चांदी के जखायर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां गुर्बत है। इसके बावजूद भी 180 रुपए फी किलो आज आपके खैबर पुख्तनख्वा में आटा मिल रहा है। इसके बावजूद भी 200 रुपए फी किलो चीनी मिल रहा है। इसके बावजूद भी कि चारों तरफ पानी मौजूद है, चारों तरफ कोयला के पहाड़ मौजूद है, लेकिन लोगों फिर भी यहां अंधेरा है, लोड शेडिंग है। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि मैंने हर नेमत से आपको नवाजा था, फिर भी आप अमेरिका के मोहताज, फिर भी आप बरतानिया के मोहताज, फिर भी आप वर्ल्ड बैंक और IMF का मोहताज। किसी ने कहा है कि जिसने सूरज के शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी के शब तारीख को सहर कर न सके। आज हमारे घरों में अंधेरा क्यों है? आज हमारे गली और कूचों में गुर्बत क्यों नाच रही है? कौन जिम्मेदार है? क्या सोचने का वक्त नहीं आया है? मैं पाकिस्तान के अवाम के शऊर को, मैं पाकिस्तान की अवाम के सोच को बेदार करना चाहता हूं कि तुम्हारी इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या यहां हिरोशिमा और नागासाकी की तरह अमेरिका ने हमारे ऊपर एटम बम का इस्तेमाल किया है? लोगों, जिस पर एटम बम का इस्तेमाल हुआ, आज नागासाकी ने तरक्की की, आज हिरोशिमा ने तरक्की की, लेकिन तुम्हारे लिए दुश्मन के एटम बम से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे ये चोर हुक्मरान, ये नाअहल हुक्मरान, ये IMF के गुलाम हुक्मरान, ये अमेरिका के एजेंट हुक्मरान है, जिन्होंने आपकी दुनिया को भी तबाह किया,
इनकी वजह से अदालती निजाम तबाह हो गया, इनकी वजह से एहतसाब के इदारे नाकाम हो गए, इनकी वजह से हमारे तालीमी इदारे नाकाम हो गए, इनकी वजह से अस्पताल हमारे नहीं चलते हैं और सेहत के इदारे तबाह हो गए। ये 2% करप अशराफिया गुज़श्ता 76 सालों से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। ये अंग्रेज के पाले हुए लोग हैं जो उनके बूट पॉलिश करते थे, जो उनके घोड़े मालिश करते थे। ये करप माफिया कभी एक नारे के साथ और कभी दूसरे नारे के साथ तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। कभी हमारा निशान चांद और तारा था, आज हमारा निशान कौमी निशान कशकोल है। कशकोल पाकिस्तान का कौमी निशान बन गया है। झूठ की बुनियाद पर इनकी सियासत चलती है। आपको याद है यहां जनाबे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो तशरीफ लाए थे। उन्होंने जब हमारी हालत को देखा तो फरमाया कि दिल चाहता है कि अपने कपड़े बेचकर तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर लूं। आज वो गरीब तुम्हारी मोहब्बत में कपड़े बेचने के लिए लंदन तशरीफ ले गए हैं, इसलिए कि वो तुम्हारी मोहब्बत में लंदन में रह रहा है, वो तुम्हारे फिक्र में उधर रह रहा है। यहां तब्दीली के नाम से हुकूमत आई थी, उन्होंने बड़ा कमाल किया, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दी। वरना आज नौजवान क्या करते थे, 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया, लेकिन न मैंने कोई एक घर देखा, न कोई 1 करोड़ तो क्या 1 लाख नौजवान भी ऐसे नहीं है जिनको गुज़श्ता अरसे में यहां नौकरियां मेरिट की बुनियाद पर मिली हूं। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपको लूटा गया। किसी ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर लूटा, किसी ने आपको सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर लूटा, किसी ने वादा किया कि मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊंगा, किसी ने हकीकी तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन कहां गया रोटी कपड़ा और मकान वाले, कहां गए वो हकीकी तब्दीली वाले? कल यही लोग लॉन्ग मार्च करते थे, यही लोग धरने देते थे महंगाई के खिलाफ। बिलावल ने कराची से मार्च शुरू किया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था, लेकिन 16 महीने हुकूमत की, फिर वो भूल गए, महंगाई को भूल गए, बदअमनी को भूल गए, लोगों को भूल गए, इसलिए कि उनके अपनी नौकरियां लग गई, प्रोटोकॉल मिल गया, तनख्वाहें चल रही थी और अवाम भूल गए और आज तक वो जवाब नहीं दे सके कि 16 महीनों में उन्होंने अवाम के साथ क्या खेल खेला है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यही लोग हैं जिनकी वजह से आप आज रोटी के लिए तरस रहे हैं। 76 सालों में ये लोग करोड़पति बन गए, बल्कि अरबपति बन गए और आप गरीब से गरीब तर हो गए। आज भी आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाएं, किसकी दौलत सबसे ज्यादा? 17 अरब से ज्यादा आपके सियासतदानों की दौलत है। आप आम वेबसाइट पर जाकर देखें, 8.7 अरब डॉलर तुम्हारे सियासतदानों के, तुम्हारे जजेस के, तुम्हारे जर्नलों के, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स की दौलत है। आखिर ये पैसा कहां से आया, कैसे उन्होंने कमाया? ये हराम की दौलत, ये कौम का खून निचोड़कर, कौम के गर्दन मरोड़कर ये पैसा आपके जेबों से निकालते हैं और उस पर फिर सियासत करते हैं। ये 5 साल जो गुजर गए, तबाही के साल, बर्बादी के साल, अवाम के साथ
वादा खिलाफियां, और इन सब ने मिलकर एक कारनामा किया कि पाकिस्तान के अवाम को IMF का गुलाम बनाया। इसहाक डार से लेकर असद उमर तक ये जितने वज़राए खजाना आए, इन्होंने हल्फ उठाने के बाद पहला काम यही किया कि जाकर IMF के दरवाजे पर, उसके चौखट पर सजदरेज हो गए। हमने यही कहा उनसे कि हमारी निजात IMF के गुलामी में नहीं है, हमारी निजात अल्लाह की गुलामी में है। हमारी निजात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है। ये एक पेज पर है। PTI, PDM और पीपल्स पार्टी IMF के गुलामी के लिए एक पेज पर है। ये फिर आएंगे, मजीद आपको गुलाम बनाएंगे। मैं अवाम से अपील करता हूं कि IMF हमारा खुदा नहीं है। हम IMF से बगावत का ऐलान करते हैं। हम IMF के साथ मुआहिदों को तस्लीम नहीं करते। हम आजाद कौम है, खुद मुख्तार कौम है। ये हमारी गैरत नहीं मानती कि मेरा निगरान वजीर आजम कहता है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हमने IMF के कहने पर किया है, और मैं किस्तों में बिल लेने के लिए दोबारा IMF से बात करूंगा। मेरे दोस्तों, 25 करोड़ अवाम का एक एटमी पाकिस्तान का कायद जब एक कहते हैं कि अवाम से बिल किस्तों में लेने के लिए मैं IMF से बात करूंगा, तो जो वजीर आजम IMF का गुलाम, जो हुकूमत IMF का गुलाम, सिराजुल हक उस हुकूमत, उस निजाम से बगावत का ऐलान करता है। ये मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, ये मेरे बहनों, ये मेरे बुजुर्गों, ये मेरे नौजवानों, दुनिया कहां पहुंच गई। और कल की खबर थी कि PIA हमारा बेहतरीन इदारा हर महीने 12 अरब खसारे में जाता है। हर महीने की बात करता हूं। आपका रेलवे अंग्रेज ने बनाया था, तोरखम तक पहुंचाया था, दरगई तक पहुंचाया था, जोब कोयटा से लेकर और बलो तक पहुंचाया था। वो लूहे तो खा गए, वो पट्टियां तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आज रेलवे 100 अरब से ज्यादा खसारे में है। हमारा स्टील मिल जो दुनिया और खासकर एशिया में सबसे बड़ा ताकतवर प्रोजेक्ट था, हमारा ख्याल यह था कि पूरे जनूबी एशिया की जरूरियात पूरा करेंगे। ये रूस ने तोहफे के तौर पर पाकिस्तान दिया था, लेकिन आज वो इदारा स्टील मिल 526 अरब का मकरूज खसारे में जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि तब्दीली सरकार, PTI की हुकूमत भी स्टील मिल को नहीं चला सके, PIA को ठीक नहीं कर सके, रेलवे को ठीक नहीं कर सके, PDM ठीक नहीं कर सके, पीपल पार्टी ठीक नहीं कर सकी। कौन इन इदारों को ठीक कर सकती है? यह सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी ठीक कर सकती है। मेरा एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बिजली का बिल अदा करता है, घर का किराया भी अदा करता है, और तुम्हारा रेलवे चोर बाजारी की वजह से खसारे में जा रहा है। ये क्यों? इसलिए कि या हुक्मरानों के घर चलेंगे या पाकिस्तान के गरीब पाकिस्तानी के घर का चोला जलेगा। आपके वजीर आजम का जो सुबह और शाम कौम को नसीहतें करते हैं, 2023 और 24 के फाइनेंशियल बजट में 1 अरब
और 24-26 करोड़ रुपया एक घर का खर्च है। 1 अरब और 24 करोड़ एक गरीब पाकिस्तान का। ये गवर्नर हाउस मेरे दाएं जाने पे बाएं जाने, ये गवर्नर हाउस जिसमें एक आदमी रहता है गवर्नर के नाम से, क्या उनका काम है? उसने खुद कहा है कि मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है। जमात इस्लामी वाले क्यों यहां आते हैं? आपका इख्तियार अगर नहीं है तो जनाब गवर्नर साहब फिर 1.25 किलोमीटर के गवर्नर हाउस में रहते क्यों हो? अगर आपका इख्तियार नहीं है, आपके इस गवर्नर हाउस में जो चिड़ियाघर है, जो स्विमिंग पूल है, जहां रोज करोड़ों के अखराजात, ये किसके पैसों पर ये गवर्नर हाउस? शर्म की बात। 700 केनाल पर मुश्तमिल लाहौर का गवर्नर हाउस, 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल पेशावर का, 32 एकड़ पर मुश्तमिल सिंध का, और बरतानिया के वजीर आजम का घर 8 कमरों पर मुश्तमिल है। एक आदमी ने लिखा, मैं बरतानिया के वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, जिसको लोग आयरन वुमन कहते थे, मेहमान बना तो किचन खुद गई, किचन में अपने हाथ से मेरे लिए चाय बनाकर मुझे पेश की। कर्ज देने वाले तो इस तरह रहते हैं। व्हाइट हाउस अमरीकी सदर का घर आपके इस गवर्नर हाउस के आधे के बराबर भी नहीं है। कर्ज देने वाले छोटे होटलों में, छोटे गाड़ियों में, आम घरों में रहते हैं, और ये बेशर्म तुम्हारी हुक्मरान वहां जब जाते हैं तो 7 स्टार और 5 स्टार होटलों में रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के सदर और IMF का सरबराह उन्हें देखकर ताली भी देते हैं कि मांगने भी आए हो और हमसे ज्यादा प्रोटोकॉल वाले घर में रहते हो। इसलिए लोगों, मैं आज अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि निगरान हुकूमत से तवक्को यही थी कि आने के बाद वो सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करेंगे, बेहतरी नहीं ला सकते तो मुल्क को तबाही की तरफ नहीं ले जाएंगे। लेकिन 3 बार बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, डीजल की कीमतों में इजाफा किया। मैं अनवर हक साहब से पूछना चाहता हूं, काकड़ साहब से, अच्छे भले इंसान थे, हमारे साथ सेनेट में थे, गरीबों की बात करते थे, लेकिन जैसे ही हलफ उठाया बिल्कुल बदल गए और फरमाते हैं कि महंगाई तो कोई मसला ही नहीं है, बिजली की बिलों में इजाफा तो कोई मसला ही नहीं है। जमात इस्लामी इस पर क्यों एहतजाज करती है? इसलिए कि उनकी नौकरी तो पक्की हो गई। मसला आपका है। 331 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 329 रुपए फी लीटर डीजल, 56 रुपया फी यूनिट बिजली का जुल्म है, जबर है। हम इसको नहीं मानते। लोगों, मैं जब आपके इस धरने के लिए आ रहा था तो मैंने परसों पेशावर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बिजली के हवाले से माहिरीन को बुलाया और नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस की। मैं पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दी है, सूरज मौजूद है, 365 दिन चमकता है, हवा मौजूद है और यहां पर पानी मौजूद है। आपको पता है कि इस सोलर से कितना हम हासिल कर सकते हैं? तमाम माहिरीन का इत्तेफाक था परसों उस नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे तो इस सूरज के शुआओं से 30 लाख मेगावाट बिजली हासिल कर सकता है।
3 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली हवा के जरिए बन सकती है। 1 लाख से ज्यादा मेगावाट बिजली पानी से हम हासिल कर सकते हैं। और ये खुद हुकूमत कहती है कि बिजली जो पानी से बनती है उस पर 6.94 पैसे खर्च आता है। मैं इसको भी नहीं मानता हूं। याद होगा यहां शहराज खान बैठे हैं, इनायतुल्लाह खान बैठे हैं, कि जब हम मलाकन 3 प्रोजेक्ट बना रहे थे बिजली का, उसका एस्टिमेट 7 बिलियन लगाया गया, लेकिन क्या हमने 7 बिलियन का प्रोजेक्ट 6 बिलियन में मुकम्मल नहीं किया था? खुद बैनुल-अक़वामी इदारे हैरान थे, इसलिए कि हम करप्ट नहीं थे, इसलिए कि हमारा मसला करप्शन और कमीशन लेने का नहीं था। बस लोगों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, हम विंड एनर्जी पर काम करेंगे, हम हाइडल पर काम करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को इस महंगी बिजली के लानत और हथकड़ियों से इंशाअल्लाह आजाद करेंगे। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, मेरा मुतालिबा क्या है? मेरा मुतालिबा यही है कि अब तक IPPs जिनके साथ बेनजीर साहिबा और उसके बाद हुकूमतों ने मुआहिदा किया है, हर साल दिफा पर जो हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा हम ले जाते हैं। यानी दिफा से ज्यादा IPPs हमसे लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर उन्होंने हमारे हाथ और हमारे पैर बांधे हैं। मैं हुकूमत को कहता हूं कि आप बैनुल-अक़वामी अदालत में जाएं और IPPs के इन मुआहिदों को खत्म करने का ऐलान करे। आलमी अदालत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। लोगों, मैं चाहता हूं कि हुकूमत के कहने के मुताबिक 220 अरब से ज्यादा पाकिस्तान में मुफ्त खोरे हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानियों, जब आप बिल अदा करते हैं, अगर किसी आदमी का बिल 30,000 है, उसको समझना चाहिए कि वो 5 चोरों का बिल भी साथ अदा करता है। अगर किसी आदमी का बिल 10,000 रुपए है, उसको समझना चाहिए कि यह हकीकी बिल नहीं है। 48% टैक्सेस हुकूमत ने उसमें इजाफी डाले हैं। मेरा यही मुतालिबा है कि हम असली कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन 48% जो टैक्सेस हुकूमत शामिल करती है बिजली के बिलों में, हम इसको देने के लिए हिरगिज तैयार नहीं है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं, यह जुल्म नहीं है कि चोरी आप करते हैं, लाइन लॉसेस आपके हैं, 1.2 ट्रिलियन का बोझ आप अवाम पर डालते हैं। इसलिए लोगों, हम जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि IPPs के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। और मैं हुकूमत को फिर कहूंगा कि इन मुआहिदों को खत्म करने के लिए अवामी अदालत ना ही सही तो बैनुल-अक़वामी अदालत में जाए। हम ताउन करेंगे, लेकिन हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। पेशावर के लोगों, मैं क्या चाहता हूं, मैं बिजली की कीमतों में टैक्सेस को मुस्तरद करता हूं। आप साथ देते हैं कि नहीं देते? मैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करता हूं और निगरान वज़ीर आज़म से कहता हूं कि इन इजाफे को वापस ले। नहीं लिया, हमारे धरने जारी रहेंगे। फिर भी आपने नहीं लिया तो फिर एक लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में हमारी तरफ से एक अगले पड़ाव के लिए तैयार रहो। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के खातिर मरने के लिए तैयार है, जेलों में जाने के लिए तैयार है, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है।
پاکستان کے لوگوں خاموش رہو گے مرو گے، خاموش رہو گے تو قیامت تک خوشحالی نظر نہیں آئے گی۔ بولو بولو اپنے حق کے لیے، نکلو نکلو اپنے حق کے لیے، چلو چلو اپنے حق کے لیے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج جس جذبے سے ڈرنے میں آپ شریک ہیں، انشاءاللہ تعالی کل پھر ہماری ملاقات اسی جگہ پر ہوگی اور یہ تحریک جاری رہے گی۔ جینے دو عوام کو، 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 جینے دو عوام کو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ ہم شیڈول کے مطابق اسی وقت اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اور اب میں اختتام کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم قاضی عزیز الحق سے، تو درخواست کو چاہیراشی اور دعا سر اختتام ہوگی۔ د دعا نه مخکې د پیښور ضلع چې څومره ملګري دلته نن راغلي وو، نو سبا دلته نن چې څومره ملګري وو، سبا 5 بجو له ټول دلته ځان راورسوي، 4 بجې به سبا دلته انشاءالله بیا حاضرېږو انشاءالله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب